बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट कहरबान आवा। और मैं हूँ अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह कि आप जहाँ होंगे खैर वाफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और आपका दिन का आगाज़ जो है वो भरपूर मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ अच्छी और मुस्बत बात से करते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी ही खूबसूरत बात है कि अगर तुझे दूसरों की तकलीफ़ का एहसास नहीं है तो तू इस काबिल नहीं कि तुझे इंसान कहा जाए। बड़ी ही खूबसूरत बात उन्होंने कहा कि ज़िंदगी की जो बुनियाद है वो एहसास पर कायम है और एहसास के बगैर ज़िंदगी बेमानी है। बेहिसी इंसान और इंसानियत दोनों की दुश्मन है। एहसास से महरूमी दुनिया की सबसे बड़ी महरूमियों में से एक है। आज अर्ज़े फ़लस्तीन एक मरतबा फिर लहू लहू है। फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी का सिलसिला इस वक्त जारी है। यहूदी जो सदियों से दरबदर थे, आज वो इस ज़मीन के असल मालिकान को बेघर करने के दर पे हैं और आज अर्ज़े फ़लस्तीन इंसानियत को पुकार रही है। आज अर्ज़े फ़लस्तीन उम्मत मुस्लिमा की राह देख रही है। यही वक्त है कि हम इंसान होने का सबूत दें और इन मज़लूमों का एहसास दिल में लिए इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। और आज इसराइली जारहियत को 39वां दिन है। अहले गाज़ा पर सेहोनी फोर्सेस की जानिब से आग और बारूद की बौछार की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में फ़लस्तीनी सिफारत खाने के डेप्यूटी हेड मिशन नादिर उल तुर्क साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। Let me ask you a very first question is very simple. Could you please provide the latest update about Gaza and the hospital there? As we have seen, all the hospitals in northern Gaza forced to shut down as Israeli forces continue to attack medical facilities. What can be done in order to save lives? Assalamu alaikum. Wa Thanks a alaikum lot salam. for giving me the opportunity to be with you, speak to my brother and sister through the Audible channel. Good morning, Pakistan. Good morning, Palestine. Good Actually, what we morning, are Mr. facing Nadir. in Gaza is genocide, war crimes, crimes against humanity. Since more than 5 weeks, Gaza without electricity, without food, without water supply, without medicine, without fuel. When we mention fuel, it is very important when there is no electricity for generators for the hospitals. A few days before, in Shifa Hospital, 37 infants passed away. According, there is no electricity to take care of them because they are very young, born before the real time to be born. So they are died as a victim for this war, as a shaheed of the killed by the Israelis. Any humanity dealing with Gaza people. We saw many videos about people from Gaza looking for getting water from leakage water on the ground because there is no water supply. We saw many people drinking the water of the sea, which is, and for sure it is not for human use. So what is Palestinians shut down all the hospital, attack most of the hospital, Indonesia hospital in the north, Shifa hospital in the south, Ahli hospital in the east, Nasser hospital and Quds hospital in Tal al-Hawa in the south of Gaza city. So what they are trying to do is give the Palestinian people one of two choice: killed by their bombs, starving to death, or transfer themselves to Egypt to become refugees for the second time in their lives since 1948. So the message of Gaza people, we will stand up and we will stay in Gaza because we are not going to try again to become refugees. In 1948 until now, we are not having our right to return because the Israelis' power is stronger than the international organization power. We have 194 resolution which gives us the right to return, but no one in the world have the power to insist Israelis to facilitate our right of return to our own homes and land since 1948 until now. So we are not going to be refugees again outside our homeland. This is Mr. the Nadir, message of please Gaza. tell our people is that the area, I think the area of the whole Gaza is almost 365 kilometers square with 2.3 million population. And currently, the siege that has been witnessed by the whole world is in front of everyone. Can you share the real number?
How many people are there who are looking for humanitarian aid right now? In Gaza, there is more than 2.2 million. As you mentioned, Gaza Strip, it is 360 kilometers. Most of it is out of use because some of it on the beach, some of it is forbidden, it can't be used for building because it is located in the border with the Israelis. So Israel is not allowed anyone to build in the borders. So we speak about 100 kilometers can be used by the Palestinians for build, others is for farms and road and infrastructure. More than 60% right now of Gaza Strip buildings, homes, are damaged, destroyed by Israelis, include infrastructures. So what we are having more than 1.5 million Palestinian homeless. Oh. Many of them are located in United Nations schools, some of them going to families or friends, but in the end, they have no resources to survive. There is no water, no electricity, no food, nothing at all to be used for them as a human being. So what the Israelis right now do, it is collective punishment against all the international law, against And all Mr. the Nadir, we have come to know international that your immediate family is also in Gaza right now. Our thoughts and prayers are with them. Are you in contact with your family? From time to time, when we have signal of mobile signal, we have opportunity to have a call, yes, because as you know, Israelis, even they are cut the internet most of the time. There is no electricity to charge your mobile, so many of the mobiles are out of battery. So this is actually, it is almost impossible to be in contact with your own family. My family, it is one of million and thousands of families are right Mr. now. Nadir, what do you think? Do the divided opinion and views during OIC summit hurt Palestine's socio-political and domestic power and diplomatic powers? The Islamic Arab Summit, what was located in Saudi Arabia, getting a very important resolutions, very important orders, but Israelis, as long as they are armed by American whoopings, American veto, American umbrella to be safe with their guilty against humanity, there is nothing going to be appear on the ground. So one day, Americans said that we need Israelis to ceasefire. The other day, they said that we understand the Israelis' needs for kill more Palestinians because if they ceasefire, this we're going to look that they are lost the battle. So what is needed actually, that all Muslim Ummah, all Arab countries, all the friends of humanity who are believing in the principle of humanity and a human being. Yes, Mr. Nadir, when we talk about the Muslim Ummah, there has been a joint session of Arab League and OIC recently. What would you like to say about that particular joint session? And do you think that the Israeli war has compounded the predicament of Arab countries, especially some of those whom had made peace with Israel? What would be the future of Abraham Accord particularly? Islam, actually, since it was establishing to have a great Israeli state from the river of Nile to river of Furat, which going to be include all of Jordan, for about 40% of Egypt, 30 to 40% of Saudi Arabia, all Lebanon, about 50% of Syria, and I don't know how much going to be bigger. This is the plan of Israelis. They are not feeling enough with stolen Palestinian territories. They are looking to stealing more land from our regions, country, our brothers around us. So this is the plan of Israelis. That's why they are insist us to, because as you know, Israelis build of a lie that Palestine it is a land without people for people without a land. So they try right now to transfer Palestinians out their territories, out their homeland, again for the second time since 1948. So, Mr. Nadir, what kind of solidarity Palestine wants from the other Muslim countries in that current situation? We need our Muslim countries to be united,
stand up with Palestinian people, stand up with Palestinian cause. Both the Americans, British, all the countries are blindly support Israelis in their crimes against humanity, against our people, to make them under pressure to end this madness, accept and obey the international law, accept the international resolutions, accept the principle of human rights, and end the occupation, establishing the independent state of Palestine with Jerusalem at its capital, facilitate the right of return of Palestinian refugees according to 194 resolution, which was created by international community in 1948. This is what we are waiting for our Muslim Ummah. Only keep these countries under pressure to accept us, obey us as a human being, have Mr. the same Nader, right to live. what are the same your right for expectations independence. from the Western countries in general and from US in particular, as the US National Security Advisor recently mentioned that they would not allow the reoccupation of Gaza's territory by the Israeli forces? The question actually, brother, what kind of democracy they have? When you are seeing when we are watching the people of Western countries in the street in favor of Palestine, on the other hand, their leaders, their governments, their parliament member, most of them, not all of them, are stand up with Israelis' crimes against humanity and giving shield for the Israelis to kill more and more Palestinians, keep supplying them with very dangerous tubing to kill more Palestinian children, women. More than 70% of the victims in Gaza are from children and women. Because this is what they are. So according to that, what we see, it is unbelievable. It is out of any So, Mr. standard of Nader, democracy. are you How expecting a become ceasefire anytime soon? people support the cause and to support the other foreign country against the cause of your people? Okay. Are you expecting a ceasefire anytime soon? I think not very soon, because the Israelis until now are looking for rebuild their image as a superpower country by our people, our children, flesh and blood, which was damaged maybe once forever in the 7th of October. So they are looking for revenge, only revenge. Until now, they are not feeling enough of our blood and flesh. So this need our cooperate together for creating peace, equal peace for our people, according to international law, by united as Muslim Ummah in favor of Palestine, and put other countries under pressure to accept and obey that things. Okay, Mr. Nader, we would certainly like to know your comments about UN's role in this whole current situation. Actually, as I said, brother, this is what we are seeing in Gaza. It is genocide. It is ethnic cleansing. So any speak about ceasefire right now by Israelis is not acceptable. So they are waiting to kill more and more, transfer the rest of the people outside the territory of Gaza. So this to be end, it is only need to use pressure over the Americans, British and French and German, who are supported blindly the Israelis in their crimes against our people. Anything else is not going to be work. I think so. This is my opinion. Thank you so much, Mr. Nader, for your time. Our prayers are with certainly with the people of Palestinian. और नाज़रीन, हम बात कर रहे थे नादिर अल तुर्क, जो कि डेप्यूटी हेड हैं पैलेस्टीनियन मिशन के पाकिस्तान में, और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि 1.2 मिलियन जो लोग हैं इस वक्त ऑलमोस्ट, जो फ़लस्तीनी हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन एड की राह तक रहे हैं, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। जिस तरह के इजरायली अफवाज की जानिब से जुल्म और बर्बरियत के जो पहाड़ मजलूम फ़लस्तीनियों पर तोड़े जा रहे हैं, इस हवाले से वो बता रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिलखसूस बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है मुस्लिम उम्मा पर कि वो यूनाइट हो, इकट्ठे हों और एक सख्त रद्दअमल का मुजाहरा किया जाए। और मुस्लिम उम्मा के अलावा उन्होंने कहा पूरी दुनिया पर जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि ये मामला अब मुस्लिम से आगे इंसानियत की तरफ बढ़ चुका है। तो जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। मगरिब और यूरोप में अवामी दबाव अपना रंग दिखाने लगा है। फ़लस्तीनी मुजाहिरीन को कुचलने की बात करने वाली बरतानवी वज़ीर दाखिला को अवामी रद्दअमल पर बरतरफ कर दिया गया। जी बिल्कुल, और सेहूनी वज़ीर आज़म ने अरब हुक्मरानों को धमकी लगाई है कि अपने मुफादात बचाना चाहते हो तो खामोश रहो।
और सेहूनी हुकूमत की जानिब से यहूदी बस्तियों में 25,000 हथियार तकसीम करे गए हैं। हमास का ये कहना है कि जंग लंबी होगी तो गजा की रेत में इसराइल के पांव धंस जाएंगे। अस्पतालों पर इसराइली हमलों के बायस हमास ने यरगमालियों से मुतल्लिक जारी मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए हैं। और अमीर कतर ने अमरीकी सदर जो बाइडन पर फौरी जंग बंदी और खून रेजी को रोकने, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और रफा क्रॉसिंग को मुस्तकिल खोलने की ज़रूरत पर जोर दिया है। तो ये थी अभी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल, और मौजूदा सूरत हाल पर हमने बात भी की नादिर अल तुर्क साहब से। उनकी जानिब से भी बेहतरीन तज्ज़िया दिया गया, और क्योंकि वो वहाँ के रिहायशी हैं, वो पैलेस्टाइन को बेहतर समझते हैं, वहाँ की सिचुएशन को बेहतर समझते हैं, तो हमारी जानिब से कोशिश की गई कि उनसे बात की जाए और उनके जो जज्बात है, उनका इजहार जो है वो सारी कौम के सामने आना चाहिए। और हमारी दुआएं हैं जी कि फ़लस्तीनियों के जो गम हैं वो जल्दी कम हो, जो वहाँ पर सूरत हाल है डिफ्यूज़ हो, और जो इंसानी अलमिया वहाँ जन्म ले रहा है, जो लोग वहाँ पर एड की राह तक रहे हैं, उनकी मुश्किलात आसान हो। तो हम यहाँ पर ब्रेक शामिल करेंगे जी। ब्रेक के बाद आएंगे जो मुल्की सियासत इस वक्त क्या रुख इख्तियार कर रही है उस पर बात करेंगे। हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ होंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सियासत की। तो इंतखाबी महाज पर तेजी देखने में आ रही है। इस वक्त सिर्फ एक जमात मुस्लिम लीग नून ही मुतहारिक नजर आ रही है। नून लीग ने इलेक्टेबल्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और सिंध और बलूचिस्तान के महाज फतह करने के लिए सरगर्म है। बलूचिस्तान का सियासी मंजरनामा एक बार फिर तब्दील होता दिखाई दे रहा है। नून लीग ने सिंध में मुलाकातों के बाद बलूचिस्तान की सियासी बसात पर नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। आज लीगी कायद नवाज शरीफ बलूचिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं, जहां मुतादिद शख्सियात की नून लीग में शमूलियत और इत्तेहाद का इम्कान है। मुस्लिम लीग काफ ने भी नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट का इंदिया दे दिया है। मौलाना फजल रहमान भी नवाज शरीफ के साथ चलने के लिए तैयार हैं। और पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो ताहाल सिंध तक ही महदूद है। बिलावल भुट्टो ने मुखालिफिन को फरवरी को बड़ा सरप्राइज देने का दावा कर दिया है, जबकि पीटीआई की मरकजी क़यादत जेलों में है। कुछ रहनुमा रूपोश हैं और कुछ तहरीक इंसाफ छोड़कर नए ठिकाने की तलाश में हैं। उधर अडयाला जेल में मुक़ीद चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। उन्हें 190 मिलियन पाउंड केस में भी गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। जी बिल्कुल। और जबकि इसी केस में साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी का नाम ECL में डाल दिया गया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार PJ मीर साहब मौजूद हैं। मीर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो मीर साहब ये बताइएगा कि हालिया सियासी मंजरनामे में सिर्फ हम देख रहे हैं कि नून लीग ही मुतहरिक नजर आती है, पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है, PTI कहीं नजर नहीं आ रही फिलहाल, तो सिर्फ नून लीग के लिए ही खुला मैदान क्यों? ये देखें, मैं बहुत देर से कह रहा हूँ कि ये जब से इनफैक्ट जब से PDM बनी है, मैंने यही कहा है कि देखो ये जो एक अलायंस है ये अननेचुरल अलायंस है। ये सारी पार्टीज एक दूसरे के साथ नहीं चल सकती, और यही वजह है कि ये इकट्ठे क्यों हुए। एक आदमी की वजह से उस आदमी को अब आपने साइड पे कर दिया है फिलहाल। अब वो साइड पे जब हुआ है, इनकी पुरानी वो जो राइवलरी है, पॉलिटिकल राइवलरी, वो शुरू हो गई है। अब देखो ना, पीपल्स पार्टी ने कल परसों जो इन्होंने किया है कि भाई हम अब इंडिपेंडेंटली जाएंगे, फिर नून ने भी अब फ्रंट फुट पे आ गए, फ्रंट फुट पे आके कह रहे हैं कि नहीं जी हम इन के साथ अलायंस करेंगे। अब वो अलायंस किसके साथ होगी सिंध के अंदर? वो लोग जिनके पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किए हुए, या अब लास्ट मिनट उनको कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा छुपा हुआ, वी डोंट नो। अगर तो वो टिल्ट हो जाते हैं, जो अभी आपने कहा है कि बिलावल एक सरप्राइज देंगे, दैट माइट बी द सरप्राइज, क्योंकि यहाँ लास्ट मिनट .com बड़े होते हैं, और यही .com जो है ये हुकूमतों को गिराते हैं और बनाते हैं, और ये जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। सो ये जो एक अलायंस होगा ये भी एक अननेचुरल अलायंस होगा। ये सब आएंगे, मौलाना फजल रहमान, ये तो डाई हार्ड। मैं आपको बताता हूँ यार, मुझे बीबी ने खुद, बेनजीर भुट्टो ने खुद कहा, PJ इनका ख्याल करना, कि हमारे बड़े अच्छे अलायंस पार्टनर है लंदन में। तो मैंने कहा बीबी मैं तो हर एक का ख्याल की बात नहीं, मैं तो आई एम फेयर, मैं तो आपको भी तनकीद करता हूँ जहाँ आप चीज ठीक नहीं होती है। तो उनके लिए ये JUIF और पीपल्स पार्टी का एक बड़ा एक अच्छा रिश्ता है था। अब आगे क्या होता है क्या नहीं है, वी नीड टू सी। नवाज शरीफ की बड़ी अच्छी दोस्तियां हैं, अख्तर मेंगल के साथ हैं, बाकी भुगतीस के साथ। तो इन्होंने अपना एक जो एक 1-to-1 रखा हुआ है इन लीडरशिप के साथ, ये सब एक ही है। क्यों? जो तो ये अपना भुगतीस, मारीज एंड मेंगल्स ये इंटर रिलेटेड है, और
ऑब्वियसली इनमें आप कह लो कि वो इख्तलाफात हैं, बट आई थिंक नवाज शरीफ में वो कशिश है कि इनको वो इकट्ठा कर ले। सो बलूचिस्तान जिस तरह आपने कहा है कि पहले PMLQ वहां बड़ी तकड़ी थी, तो मुस्लिम लीग ऑल टुगेदर बलूचिस्तान में इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब वो एंड पे आ जाएगी, लेट्स वेट एंड सी क्या होता है। चौधरी शुजात के भी वहां बड़े मनासिब है लोगों के साथ, ये किनको खींचते। सो ये एक देखना सियासी तो ये जो होगा कहते हैं ना, होता क्या है। मीर साहब, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अवाम को सेलेक्ट राज की कोई जरूरत नहीं, अवाम किसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। आपका तज्जिया क्या कहता है इस बारे में कि बिलावल भुट्टो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये देखें, ये एक बहुत मंजीवी स्टेटमेंट उन्होंने दी है। उन्होंने ये जैसे कोई सिलेक्ट तमगा होने जा रहा है। नहीं, तमगा है सिलेक्ट, ये ये इन्होंने दिया था PTI को। अब PTI, अभी PTI का वोट बैंक तो है, तो देखें ना, अगर हम झूठ बोले बैठ के और गलत किस्म की बातें करें तो वो गलत है। रॉन्ग इज रॉन्ग, राइट राइट। PTI का बिल्कुल वोट है। दैट अगेन रिमेन्स टू बी सी कि इसको आप कैसे नर्चर करते हैं। जो बिलावल बात कर रहे हैं कि ये जो सिलेक्ट की बात कर रहे हैं, ये PMLN को लगा रहे हैं, PMLN ने भी इनको भी किया। सो इनकी जो पॉलिटिकल जो राइवलरी है, दैट रिमेन्स द सेम, दैट टोटली रिमेन्स द सेम। और ये बड़ी एम्बेडेड राइवलरी है। मैं नवाज शरीफ के बिलावल साथ भुट्टो ने तो सिलेक्टेड होने की बात की कि सिलेक्टेड राज को कबूल नहीं किया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब वो किंग्स पार्टी भी कह ही रहे हैं नून लीग को। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ खुद परेशान दिखाई दे रहे हैं सूरत हाल से, और अपनी ही पार्टी की जिम्मेदारी अब लगाई है कि ये जो किंग्स पार्टी या सिलेक्टेड वाले जो अल्फाज हैं, लाडले वाले जो तासुरात हैं, इनको दूर किया जाए। देखिए, PMLN कभी भी किंग्स पार्टी नहीं हो सकती। उसने हमेशा एक, आप कह लो कि एक काउंटर एक स्टैंड लिया हुआ है, और उन्होंने हमेशा एक, मैं कहता हूं कि अगर आप एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, उनके आगे खड़े रहेंगे। और उनके आगे जब खड़े रहे हैं तो यू कांट से कि दे आर द किंग्स पार्टी। ये आएंगे, अपने जोर पे आएंगे और इनके वोट बैंक पे आएंगे। लेकिन इनका जो वोट बैंक है पंजाब के अंदर, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन, क्या ये कंसोलिडेट हो सकता है विद PTI या नहीं। दैट इज द की क्वेश्चन, क्योंकि PTI की सपोर्ट है, और PTI स्टिल भी ये एक ऐसा प्लेयर होगा कि ये इधर भी टिल्ट कर जाएगा, उधर भी टिल्ट कर जाएगा, प्रोवाइजो कि इनका आगे रास्ता क्या बनता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो आपके चेयरमैन है PTI इमरान खान, इनके साथ क्या होता है। दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। वो अपने केसेस लड़ें, बिल्कुल फाइट करें, लेकिन जो ये बात करें ना बिलावल के लेवल प्लेइंग फील्ड, आई टोटली एग्री विद हिम। कोई भी आए, क्योंकि अब लोग तंग आ गए हैं। वो पीपल्स पार्टी से भी तंग है, वो ये से नून से भी तंग है, वो PTI से भी तंग है, वो सबसे तंग है अवाम। अवाम उनको वोट देगी जो बिलावल बात है कि फ्री एंड फेयर कराओ, which is a fair comment, और वो PMLN भी कह रही है, PTI भी कह रही है। सो आई थिंक ये इस, अगर हम मोडस ऑपरेंडी को आप कह लो कि अडॉप्ट कर लें, साहब, आप तो I think जो नून लीग की टॉप ब्रास है उनके साथ ऑब्वियसली रवाबित रहते हैं, साफियों के रहते हैं, इन्फॉर्मेशन आती रहती है, इनसाइड इन्फॉर्मेशन। अभी फॉर एग्जांपल मफरूज़े पे अगर बात करते हैं, ये जो तासुर अभी दिया जा रहा है वो तो यही कि चौथी बार नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। खुद उनकी पार्टी की जानिब से जिस तरह का वो आ रहा है सामने इमेज पूरा, तो ये कहिएगा कि कोई डिफरेंट नवाज शरीफ नजर आएंगे, कोई प्लानिंग कर ली गई है, क्योंकि मसाइल बहुत गंभीर हैं, जो मुआशी मसाइल हैं बिलखसूस, तो कोई नए इसहाक डार नजर आएंगे, कोई नई पॉलिसियां नजर आएंगी। देखिए, लोग सारे हुई हैं, कोई इस पार्टी, ये बोर्ड ऑफ चेस है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल बोर्ड ऑफ चेस। कोई इधर चला जाता है, कोई इधर आ जाती है, बिशप उधर चला जाता है, और किंग इधर चला जाता है। सो ये हम एक चेस बोर्ड पे सारे जाते हैं, और सारों को अजीम, सारों को शौक है कॉरिडोर्स ऑफ पावर में आने का। भाई जरूर आओ, लेकिन हम तो कहते हैं काम करो, महंगाई को कम करो, लोगों के फलाह बहबूद की काम करो। वो होता नहीं। नारे सब लगाएंगे, सब ने लगाए नारे, क्या आपके नारे पूरे हो गए किसी के? कोई कहता है जी ये लोग क्या, कोई कहता है रोटी कपड़ा मकान, कोई कहता है करप्शन, क्या ये ठीक हुए? करें नहीं हुए। ये एक ही तरीके से ठीक होंगे जब हमारे पूरे पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम तनकीद बराए तामीर करेंगे। वो हम करते नहीं, और यही वजह है कि अब आपने एक स्टेटमेंट दे दी ना, आपने मुझे एक सवाल कर दिया कि नवाज शरीफ ये कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो बैठा होगा वो कहेगा नहीं नवाज शरीफ नहीं, उसने ये किया है। अब यहाँ एक पॉलिटिकल रैंगलिंग होगी, पॉलिटिकल बायस्ड एनालिसिस हो गए, और यही वजह है कि इन एनालिसिस से जो आवाम बैठी है वो कंफ्यूज हो जाती है, और ये जब कंफ्यूज हो जाती है फिर आपका वोट भी कंफ्यूज पड़ता है। हमें वोट
बात करेंगे अब तहरीक इंसाफ के बारे में। हर गुजरते दिन की बात की जाए तो मुश्किलात में इजाफा ही देखने को मिल रहा है और चेयरमैन पीटीआई पर भी दोबारा से जो है उनको फर्द जुर्म उन पर आयद कर दी गई है, गिरफ्तार कर लिया गया उनको 100 मिलियन पाउंड जो स्कैंडल है उसमें। तो क्या लगता है इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ आपको नजर आएगी? मुझे आप चीज बताएं, एज ए लेमैन, ये पैसा इमरान खान के अकाउंट में गया, सिंपल एज दैट, दैट्स इट। अगर तो उसके अकाउंट में गया तो इमरान खान को वो तो ना ताला लगा के चाबी समुद्र में फेंक दें, लेकिन उसके अकाउंट में उसने यूनिवर्सिटी के अंदर डाला, सारा पैसा उधर लग गया। अब खत्म हुई। अब बात आती है कि जो क्राइम एजेंसी है इसकी लंदन की, यूके की, उन्होंने किस बेसिस पे ये पैसा दिया है? ये क्राइम एजेंसी बताए ना हमें सबसे पहले कि आपने पैसा किस बेसिस पे इधर दिया है जो कि पैसा इस यूनिवर्सिटी में लगा है। दिस इज इट। हाँ, पॉलिटिकली जब चार्ज होता है, ये मैं आपको बताता हूं कि सबसे हाईएस्ट चार्ज लगता है और उसके बाद ऐसा 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 ये चार्ज नीचे आता है। नीचे से ये नहीं है कि हाईएस्ट लोएस्ट लगा और फिर हाई पे। ये कानूनी, हम भी ब्रिटिश लॉ पे चलते हैं, क्योंकि ब्रिटिश लॉ के अंदर सबसे पहला जो होता है, आपको पकड़ेंगे सबसे हाईएस्ट चार्ज लगाएंगे, फिर ग्रेजुअली वो चार्ज को नीचे 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 लाके फिर बाकी चार्जेस हैं उस पर अमल होगा। अब ये प्रोसेस लंबा हो रहा है। इस प्रोसेस के अंदर कोई भी, आपने नवाज शरीफ के साथ ही देखा क्या हुआ, आपने जरदारी के साथ देखा क्या हुआ, आज इमरान के साथ हो रहा है। सो दैट्स हाउ वी वर्क। सो इस चीज मीर साहब, आपको लग रहा है कि इसी 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है, इसमें कुछ और अहम गिरफ्तारियां भी होंगी आने वाले दिनों में? देखिए, गिरफ्तारियों से कुछ नहीं होता, आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन आप उस वक्त करते हैं जब आपका जो मुल्जिम है या एलिज्ड मुल्जिम है वो फ्री है, उसको पकड़ो, उसको आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखो, जो कि बाहर की क्राइम एजेंसीज करती हैं। वो आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखती है और सालों साल रखती हैं, और इवेंचुअली आपको जब उनके पास सब्सटैंशियल नहीं, कंप्लीट प्रूफ आता है, एंड देन यू आर चार्ज्ड। तो यहाँ तो चार्ज पहले हो जाता है बंदा, जिस तरह आप चार्ज करते हैं। ठीक। अच्छा मीर साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये पिछली हुकूमतों के साथ भी होता रहा है, हुक्मरानों के साथ, तो अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ भी वही हो रहा है। तो मुखालिफिन की जानिब से ये कहा जाता है कि ये मकाफाते अमल है, तो क्या समझते हैं आप, ये वाकई मकाफाते अमल? ये स्टैंडर्ड एसओपी है, और मुझे से कोई वो फर्क नहीं है कौन अंदर होता है कौन बाहर होता है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जब हम बाहर होते हैं, खुदा की कसम कोई भी लीडर आए उसको हम इतना बेइज्जत कर दिया पाकिस्तान के अंदर, और फिर वो हाथ मिला रहा है टॉप डिग्निटरीज के साथ। वो क्या सोच रहे होंगे कि देखो ये पाकिस्तान का करप्ट आदमी है, मैं इसके साथ हाथ मिला रहा हूँ। कोई भी हो, ए बी सी, कोई भी हो, तो इसमें नुकसान इनका नहीं है। इसमें एक तो नुकसान है हम का, हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी का, और मेरे पाकिस्तान का। इस चीज का मुझे सिर्फ डर होता है, यार ये क्या जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी शॉर्ट, मैं गया था प्रेसिडेंट जरदारी के साथ वाशिंगटन गया, तो सेनेट के अंदर गए, तो एक बीबीसी की स्काई न्यूज की फॉक्स न्यूज की प्रोड्यूसर आ गई, सुजन डॉनगी। तो मुझे कहती है, जब आसिफ जरदारी और हिलरी क्लिंटन और हामिद कारजाई अंदर आ रहे, तो मुझे कहती है, इज दैट मिस्टर 10%? मुझे शर्म आ गई। मैं, एक्सक्यूज मी, ही इज माय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, व्हाई यू सेइंग दिस? देखो, मैं तो डिफेंड करूंगा जो भी होगा बाहर, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मेरा प्रेसिडेंट या मेरा प्राइम मिनिस्टर ये चोर है। अगर बाहर आपको क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव एज अ पाकिस्तानी, यू हैव टू डिफेंड। साहब, आपने सही जानिब तवज्जो मबजूल करवाई है कि तमाम जो सियासी जमातें ने मिल बैठकर बेसिकली पाकिस्तान की बका और जो आम आवाम है उनकी फेवर के लिए, उनके फ़ायदे के लिए काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया और पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर अपना तज्जिया पेश किया। तो अब हम शहरबान हो जाएंगे ब्रेक की जानिब। अब हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे, हमारा जो सेगमेंट है वो ट्रिब्यूट देना है, और हम ट्रिब्यूट देते हैं अपने लेजेंड्स को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया। तो आज बात करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वर्सटाइल अदाकार इकबाल हसन की, जिनको मद्दाहों से बिछड़े 39 बरस बीत चुके हैं। और इकबाल हसन ने अपने 20 साल फनी करियर में 300 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की। जी बिल्कुल, और जिनमें उनकी 50 फिल्में बतौर हीरो भी शामिल हैं। तो जी, इकबाल हसन साहब को ये ट्रिब्यूट सुनो पाकिस्तान की जानिब से, और उनकी ज़िंदगी, उनके फ़नी करियर से मुतल्लिक हम लोगों ने एक ख़ास रिपोर्ट तैयार की
और हमारी ये रिवायत है सुनो पाकिस्तान की कि हमारे जो लेजेंड्स हैं हम उनको इसी तरह से ट्रिब्यूट पेश करते रहते हैं और करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम शामिल करेंगे ब्रेक शहर बानो। बिल्कुल, ब्रेक बाद हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डायबिटीज़ का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अवाम में इस मूजी मर्ज के बारे में आगाही पैदा करना है। डायबिटीज़ एक मोहलिक और दायमी मर्ज है जिसमें इंसानी जिस्म में लबलबा जो इंसुलिन है वो एक अहम हार्मोन है जो नहीं बन पाता, जिसकी वजह से खून में ग्लूकोज की मिकदार कंट्रोल नहीं हो पाती। ग्लूकोज इंसानी खुलियों के लिए तवानाई का अहम जरिया है और इसका खून में ज़्यादा या कम होना दोनों ही सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो आज के दिन की मुनासिबत से हमारे साथ दो अहम मेहमान हैं। डॉक्टर मतीन होतियाना साहब हार्मोनल बीमारियों, डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक अमराज के ये माहिर हैं, अमेरिकन बोर्ड से सर्टिफाइड हैं, अमेरिका में 10 साल काम कर चुके हैं और आजकल नेशनल हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब कौमी और बैन अल-अक़वामी मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के रुकन भी हैं और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैनब गोंदल साहिबा, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट और डाइटिशियन हैं। और आप हमारे प्रोग्राम में जो ग़ज़ा की अहमियत है, जिस्म पर उसके क्या असरात हैं और खाने से पहले खुराक के मराहिल से मुतल्लिक जो माहिराना मशवरे हैं वो देती हैं और वो तमाम मशवरे हमारे नाज़रीन सुनते भी हैं। तो इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। ये डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। आप मुझे ये बताएं कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो ट्रीट की जाती हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे बुलाया। जैसे आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है और जहाँ तक एंडोक्रिनोलॉजी का ताल्लुक है तो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं। उसमें से एक सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में और वो ग्लैंड्स पर हार्मोन्स पैदा करते हैं। जी। तो अगर किसी हार्मोन की जिस्म में ज़्यादती हो जाए या कमी हो जाए, दोनों सूरतों में बीमारी हो सकती है। मिसाल के तौर पे लुबलुबा जिसकी आपने बात की, इसको हम पैंक्रियाज भी कहते हैं, वहाँ से इंसुलिन पैदा होती है। तो अगर जिस्म में इंसुलिन की कमी हो जाए तो उससे ज़ियाबीतस या डायबिटीज़ हो जाती है। इसी तरह एक और बहुत जो ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, ये भी पाकिस्तान में इसकी बीमारियाँ भी बहुत बढ़ रही हैं जो यहाँ पर गले में होता है। तो ये थायराइड हार्मोन पैदा हाइपर और हाइपो। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली। हाइपो में है कि थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, हाइपर में उसका ज़्यादती हो जाती है। तो जिस्म ने एक बहुत ही फाइन बैलेंस रखा होता है हार्मोन्स का, तो थोड़ा सा भी इसमें ज़्यादती हो या कमी हो। फिर एक और बीमारी जो आजकल खास तौर पे यंग बच्चियों में बहुत कॉमन है, उसको हम PCOS कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। तो ऑल्दो ये हार्मोन जिस्म में इंतहाई माइन्यूट मिकदार में होते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी इनकी कमी या ज़्यादती हो तो उससे बीमारी पैदा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जी एज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हम पहले तो उसकी तशखीस करते हैं, प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं और अच्छी बात यह है कि जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास उसका इलाज मौजूद है। डॉक्टर साहब आज हम चूँकि डायबिटीज़ से मुतल्लिक बात कर रहे हैं तो हमारे व्यूवर्स को सबसे पहले ये बताएं डायबिटीज़ होती क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है। जी वो बहुत अच्छा सवाल है। जैसे आपने थोड़ा सा तो मेंशन किया इंट्रोडक्शन में कि ज़ियाबीतस में मरीज़ के खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। जी। इसकी 2 बुनियादी वजूहात होती हैं और उसी के मुताबिक इसकी 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। पहली है टाइप 1 डायबिटीज़, ये सिर्फ 10% मरीज़ों में होती है और इसमें लुबलुबा जो है वो इंसुलिन पैदा करना बिल्कुल बंद कर देता है। आमतौर पे ये यंगर एज में होती है, बच्चों में होती है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि अब हमें ओल्डर एज में भी टाइप 1 के मरीज़ मिल रहे हैं। 40 साल 50 साल में हम डायग्नोज करते हैं। तो जब भी कोई मरीज़ ज़ियाबीतस के साथ अपने डॉक्टर के पास जाएँ तो ज़रूर ये एवेलुएट कराएं कि टाइप 1 है या टाइप 2 है। जो दूसरी किस्म है वो 90% मरीज़ों में होती है, 90% ज़्यादा कॉमन है, उसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें मसला जो है वो मोटापा है, वज़न का ज़्यादा होना है, जिससे ये होता है कि इंसुलिन ये मरीज़ पैदा तो कर रहे होते हैं लेकिन वो इंसुलिन उस तरह अपना एक्शन नहीं कर रही। इस बीमारी को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ जिसके बारे में आपकी अभी रिपोर्ट में भी बताया गया कि इसके मरीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, पूरी दुनिया में इजाफा हो रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम अब दुनिया की जो ममालिक की लिस्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायबिटिक्स, हम उसमें तीसरे नंबर पर आ गए और इसी साल आए। पहले अमेरिका था तीसरे नंबर पे, अब हमने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया इसमें। अनफॉर्चुनेटली हमारी तो दुआ है कि हम और चीज़ों में अमेरिका से आगे जाएं, लेकिन फ़िलहाल हम डायबिटिक्स की बीमारी में आगे चले गए। हम लोग डॉक्टर साहब फिर इसकी डिटेल्स में भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर ज़ैनब आपके कमेंट्स अबाउट डायबिटीज़। डायबिटीज़ की अगर बात की जाए तो इसको हम सिर्फ खाने से रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हम बात करते हैं अक्सर लोग ये कहते हैं कि चीनी बहुत ज़्यादा
खाता था तो जी। शायद इसको इस वजह से डायबिटीज, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डायबिटीज़ में आपका रोल ऑफ जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और वो रोल प्ले कर रहा होता है, और उसके साथ जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आपके हार्मोन्स का एक्सेस रिलीज हो जाना, आपकी बॉडी पे इंसुलिन का होना, लेकिन उसका एक्ट ना करना बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी पे जो है वो एक्ट कर रहा होता है, और आप उसी पे ही डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और आपकी बॉडी जो है वो टाइप 1 या टाइप 2 में डिवाइड होना शुरू हो जाती है। ठीक। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ को या डायबिटीज़ आपको हो गई है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आपको पता चले। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें आपको बुखार हो गया तो आपको पता चल गया कि आपको डायबिटीज़ है। ओवर द टाइम आपको चीज़ों के साथ साथ ये चीज़ें पता चलती हैं, आपकी बॉडी में साइंस एंड सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन सिम्टम्स जो हम कहते हैं वो ये होता है बहुत ज़्यादा यूरिनेशन करना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, उसके साथ जो है रैपिड वजन गिरना या रैपिड वजन बढ़ जाना, और उसके साथ साथ मैंने जो रीसेंट रिसर्चेस में भी पढ़ा है वो ये है कि आपके नेक पे टैग्स, स्किन टैग्स बनना शुरू हो जाना, यानी काले मोके जिसको हम अक्सर शायद जी, कहते हैं, सही, वो सही। बनना शुरू हो जाना, और आपके जो ये नेक के जो लाइंस हैं, लाइंस को बहुत ज़्यादा काला होना शुरू हो जाना, ये भी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में होना शुरू होती है, तो उसके पहले साइंस में आता है। तो ठीक। अगर आप इसको शुरू में ही ट्रीट कर लें, और ये तो ऐसे कौन सी ग़िज़ाएं खाने से हम ज़्यादा इस जाने बढ़ते हैं, यानी डायबिटीज़ हो सकती है? डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, अगर एक दफ़ा आपको हो जाती है तो दोबारा से रिवर्स नहीं होती, आपकी ओके। बॉडी में कहीं ना कहीं वो रहती है। लेकिन आप उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? आप वॉक और एक्सरसाइज डेली बेसिस पे अगर करें, आप अपनी डाइट को अच्छा कर लें। सबसे पहले तो प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं, फास्ट फूड्स जो हैं, आप उनका इंटेक बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसके साथ जो जूसेस और कैंड ड्रिंक्स आपको मिल रही होती हैं, आप उसका इस्तेमाल कम कर दें। फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की तरफ अगर आप आते हैं तो उसका इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन भी होती है कि हम लोगों ने शायद शुगर का इंटेक जो है वो बिल्कुल बंद कर देना है। शुगर का इंटेक, हाँ, जो सफ़ेद चीनी आपको मिल रही होती है आपने उसका इंटेक बंद करना है, लेकिन जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और आपकी जैसे खजूर है, इंजीर है, अगर वो आपको शुगर मीठा दे रही है तो वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी है। अगर आप बॉडी में शुगर का इंटेक नहीं करते, इस नेचुरल शुगर्स का, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है या आपकी शुगर, जिसको हम कहते हैं कि जी फ्रूट्स मेरी खा शुगर सकते बड़ी हैं? लो हो रही है, बिल्कुल फ्रूट्स खा सकते हैं। जैसे इवन आपने बहुत कॉमन प्रैक्टिस देखी होगी, इसको शुगर है, इसको आम बिल्कुल ना दें। बिल्कुल, मैं यही पूछने लगी थी। लेकिन आम भी ठीक है, डायबिटीज़ वालों को आम कम देना चाहिए, उसकी क्वांटिटी कम कर दें, लेकिन ये ना करें कि बिल्कुल बंद कर दें। ठीक। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स में ये चीज़ कहती हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए तरसे नहीं, यानी सामने रख कर उसको ये ना कहें कि मैं तो ये नहीं खा। मतलब आप बैलेंस फूड खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, सब कुछ खाएं, किसी भी चीज़ की ज्यादती ना करें। डॉक्टर साहब, आप अभी जैसे हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि ये बड़ी हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ पर डायबिटीज सबसे ज्यादा तेजी से फैल रही है। तो ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, तो अभी जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं उनमें ज्यादा तादाद किस तरह के डायबिटिक पेशेंट्स की है, जिनके जेनेटिकली ये डिजीज ट्रांसफर हो रही है, या कि जिनको बाद में अपनी लाइफ में लेटर ऑन ये डिजीज हुई? जी, जैसे हमने बात की कि ज़ियाबीतस के मरीज़ों में इजाफा पिछले 15-20 साल में बहुत हुआ है। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था यहाँ लाहौर में लेट 90s में, तो उस वक्त डायबिटीज़ कम मरीज़ों में होती थी, हेपेटाइटिस, इस तरह के मसाइल ज़्यादा होते थे। 15-20 साल बाद वापस आया हूँ तो हर तीसरे पाकिस्तानी को डायबिटीज़ है, यानी कि हमारी प्रेवलेंस अब 25 से 30% है। इसमें एक तो जेनेटिक्स का रोल है। ओवरऑल अगर हम देखें तो साउथ एशिया में, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान में जो लोगों की जीन्स हैं, मोर प्रोन टू डायबिटीज़। उसकी वजह है कि हमारा जो फैट है वो बॉडी ऑर्गन्स के इर्द गिर्द इकट्ठा होता है, जिगर के इर्द गिर्द, गुर्दों के इर्द गिर्द, इसको हम कहते हैं विसरल फैट। तो एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, दूसरा विद टाइम हमारी डाइटरी हैबिट्स चेंज हुई हैं, फास्ट फूड का इस्तेमाल बढ़ बहुत गया ज़्यादा हो है। गया है। अब यह है कि एनीबडी कैन जस्ट ऑर्डर फूड। दूसरा, हमारी एक्टिविटी कम हो गई है, लोगों ने गाड़ियों का इस्तेमाल, बाइक का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दिया है, कुछ इसमें पोल्यूशन का भी एक फैक्टर है। हाँ जी। और तीसरा मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रेस और है इसमें, जी स्ट्रेस। बिल्कुल, आपने मैं इसी तरफ आ रहा था कि अब मैं अक्सर जब मरीज़ों से पूछता हूँ, जब मरीज़ आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि डाइट की भी बात की जाए, क्योंकि देखें डायबिटीज़ को सिर्फ दवाइयों से नहीं कंट्रोल किया जाता कि आप मरीज़ को सिर्फ नुस्खा लिख के दे दें। उसके लिए आपको मरीज़ को ओवरऑल असेस करना होता है, उसमें उसकी डाइट अहम है, जिसमें कई दफ़ा हम डाइटिशियन जैसे डॉक्टर साहब हैं उनकी हेल्प लेते हैं, फिर उससे फ़िज़िकल एक्टिविटी की बात करते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशन ये है कि 30 मिनट वॉक की जाए हफ्ते में कम से कम 5 दिन, यानी कि 150 मिनट्स अ वीक अगर एक्टिविटी की जाए तो उससे हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी कम होता है, डायबिटीज़, उसको असेस करते हैं। और तीसरी चीज़ है स्ट्रेस, कि घरों में स्ट्रेस बढ़ गए हैं, अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में, माशरे में मटीरियलिज्म बढ़ गया हाँ है, जी। तो छोटी छोटी चीज़ों का, तो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं उसको भी एड्रेस करूँ, थोड़ा सा उनको काउंसल करूँ कि वो अपना जो है वो
ज़रूरत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। तो ये सब चीज़ें मेरा ख्याल है कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारे माशरे में कि हम इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ रही है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। क्योंकि अगली बात यह है कि डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज़। ये जो हम सुनते हैं कि किसी को हार्ट अटैक हो हाँ गया, जी। किसी का स्टेंट डाल दिया गया, सबसे कॉमन कॉज डायबिटीज़ है। मैं यही पूछने लगी थी कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जी। जो आपको डायबिटीज की तरफ लेकर आती हैं? जी, उसमें एक तो ये है कि वो बीमारियां जो डायबिटीज़ के नतीजे में होती हैं, स्ट्रोक है, फालिज है, आँखों की बीनाई का चले जाना, यानी कि ब्लाइंडनेस की सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज पूरी दुनिया और पाकिस्तान में डायबिटीज़ है। फिर डायलिसिस यानी कि गुर्दों का काम करना God. छोड़ देना, जी। ये आपने अक्सर सुना होगा। तो मसला ये है कि अगर हम डायबिटीज़ को नहीं कंट्रोल करेंगे तो ये हमें दीगर बीमारियों की तादाद भी इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे पास डॉक्टर साहब इसमें अब एक टेक्निकल चीज़ है और ये मैं चश्मदीद गवाह हूँ उस चीज़ का। एक फार्मेसी पे मैं एक मेडिसिन ले रहा था और मेरे साथ एक साहब खड़े थे, उन्होंने जो डायबिटीज़ घर में चेक करने के लिए जो मशीन होती है जी 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 वो उन्होंने 3 खरीदी वहाँ पे मेरे अच्छा, सामने, तीनों अच्छा, खुलवाई, interesting। तीनों पे उन्होंने अपना ब्लड का वो चेक किया और मुख्तलिफ रीडिंग्स आई। सही सही अब सही। एक आम आदमी जो घर में अपना टेस्ट कर रहा है वो जी। उसके अकॉर्डिंग ही इंसुलिन लेगा या इसके अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान लेगा, तो वो बिल्कुल। कितना रिलाय कर सकता है उस मशीन पे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हमसे भी अक्सर मरीज़ यही पूछते हैं कि जी। जी हमारे पास 2 मीटर थे। देखें कुछ जो वेरिएशन है यानी कि 10 to 15% वेरिएशन ये तो एक्सेप्टेड है। बेसिकली जब आप शुगर चेक करते हैं मीटर से तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि आपकी शुगर किस रेंज में है। मिसाल के तौर पे अगर 120 उस पे आई है तो वो 130 से 110 की रेंज समझ लें कि है। सही, सही। उसमें इतना है। दूसरा अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको जो हमारे अक्सर मरीज़ अब उससे बेनिफिट ले रहे हैं, वो है कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर। वो एक छोटी सी चिप होती है जो बाजू पे लग जाती है सही। और उसके साथ फिर आपको, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला जो डायबिटिक पेशेंट्स का है वो उनको ये कहना है कि आप अपने शुगर चेक करें करें। बार क्योंकि देखें हम ऑनेस्टली खुद भी मैं सोचता हूँ कि ये एक तकलीफ दे हाँ हमारे जी, अपना सुई खून बार-बार निकालना सुई चुभे। दिन में 3-4 दफ़ा इस अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हो रही हैं तो ये सेंसर जो है इसमें कोई नीडल नहीं होती, एक छोटा सा फिलामेंट चला जाता है आपकी स्किन के अंदर और ये हर 5 मिनट बाद शुगर खुद ब खुद चेक कर रहा होता है और एक छोटा सा सेलफोन नुमा डिवाइस होता है, आप उसको सिर्फ स्कैन करते हैं और आपको शुगर का पता चल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान में भी ये डिवाइस अवेलेबल है, तो जो मरीज़ हमारे पास आते हैं हम उनको वो That's ऑप्शन great. देते हैं। वो बहुत और ज़्यादा ये ऑथेंटिक इसकी रीडिंग जो होती है उसे समझा जाए। जी जी ये बहुत एक्यूरेट है। इसके साथ में मरीज़ को फिंगर स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये अमेरिका में जो FDA जो इदारा अप्रूव करता है उसका अप्रूव्ड है और हम बहुत अरसे अमेरिका, जैसे आपने कहा मैं पहले रहा हूँ, तो वहाँ तो हम ठीक। 4-5 साल से यूज़ कर रहे हैं ठीक। और इससे मरीज़ों के खासतौर छोटे बच्चे, देखें हम एक बात बिल्कुल ध्यान में मैंने ये रखिएगा। देखा है, छोटे बच्चों को ज्यादा ये यूज कर जी जी उनके लिए बहुत मुश्किल है छोटे बच्चों के लिए कि उनको कहना कि बार बार शुगर चेक करें, तो उनके पेरेंट्स के लिए इतना वो कंफर्टिंग है। होता है। बच्चा स्कूल में बैठा पढ़ रहा है तो टीचर जो है वो जाके शुगर सिर्फ स्कैन करके चेक कर सकते हैं। तो अच्छा डॉक्टर जैनब आपकी जानिब आऊंगी मैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की, तो क्या डायबिटिक पेशेंट वो कर सकता है डाइट? डायबिटीज़ पेशेंट के लिए तो डाइट सबसे अच्छी होती है, लेकिन उसकी भी टाइप्स हैं। वो कोई आम इंसान वाली डाइट हम उनको नहीं देते क्योंकि मैंने ये देखा है अक्सर कुछ लोग हैं जो हमारे रिलेटिव हैं जो इस बीमारी में मुब्तला हैं, वो भूखे नहीं रह सकते। जब उनको भूख लगती है तो वो कांपना शुरू कर देते हैं, शिवरिंग उनकी बॉडी करना शुरू कर देती है और वो अपने आप को खोना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनके शुगर लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं रहते। वो जब बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे होते हैं तब उनकी बॉडी में ये सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट होती हैं। तो हम हमेशा जब भी डायबिटीज़ का प्लान बना रहे होते हैं या किसी भी पेशेंट को काउंसिल करते हैं तो मैं उसको ये ज़रूर बताती हूँ कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनसे उनकी डायबिटीज़ का या उनके इंसुलिन का जो लेवल है वो हाई जाएगा ठीक। और कौन से लेवल्स हैं जो कम रहेंगे। ओके। अब जैसे अगर हम बात करते हैं चावल की, चावल खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो जब जी। जैसे ही आप एक पेशेंट है वो डायबिटीज़ में एंटर हुआ है और अब आप उसको एकदम से कहें कि तुमने चावल नहीं खाने क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है वो इंसुलिन बढ़ा रहा है, तो वो चावल खाना बंद तो नहीं ऑफ कोर्स हो सकते। तो आप उनको ये ट्रेन करें कि आप जब चावल ले रहे हैं तो अपनी प्लेट में आप चावल कम, उसके साथ चिकन मटन बीफ जो भी आप ले रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा ले लें, सलाद लें, रायता लें और आप एक पूरी प्लेट बनाएं जिसमें सलाद ज़्यादा, चावल कम आए और जो प्रोटीन पोर्शन है वो ज़्यादा आए, ज़्यादा हो। तो आपकी इंसुलिन एकदम से नहीं बढ़ेगी और ठीक। आप ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो फुल रहेंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पास्ताज, ब्रेड्स, वाइट ब्रेड्स बहुत ज़्यादा कॉमन है खाने में। मैं सिर्फ वाइट ब्रेड नहीं ब्राउन सबके अगेंस्ट चलती हूँ क्योंकि उन सब में ही ईस्ट भी डलता है और वो आपकी बॉडी में जाके ऑलमोस्ट मोड ऑफ एक्शन जो है वो सेम ही ले तो रहे क्या होते हैं। खाना चाहिए? घर का चक्की वाला आटा? बिल्कुल, जिसके अंदर चोकर एडेड हो। अच्छा मज़े की बात ये है कि पहले घरों में चोकर वाला आटा या चक्की वाला आटा लाया जाता था, अब वाइट आटा अलग से खरीद के उसके अंदर चोकर ऐड करके खाया जाता है। बिल्कुल। तो जो चोकर, अच्छा पहले लोग ये भी कहते हैं कि घरों में निकाल दिया जाता था जब घरों में हम गाँव में रहते थे,
तो उसका अक्सर मैं ये जवाब देती हूँ कि जो वो चोकर का वो था, जो छान था, वो निकाला जाता था, तो वो घर में मुर्गियां होती थी, वो खा लेती थी। बिल्कुल। और उन मुर्गियों की फॉर्म में वो मुर्गी भी तो आप ही खा रहे हो, वो आपकी बॉडी में बाय द एंड आ जाता था। डॉक्टर साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। माजूद जी। के साथ अगर आप क्विकली रिमार्क्स दें, कैसे लोग जो है वो इस बीमारी से निजात हासिल करें और महंगी महंगी जो डॉक्टर की फीस है उससे जान छूटे, कोई पॉजिटिव मैसेज, कोई उम्मीद की किरण। मेरी तरफ से भी एक सवाल है, वो भी ले लें। वहाँ के मरीजों में और यहाँ के मरीजों में क्या फर्क है? अमेरिका और पाकिस्तान के जी बिल्कुल, मैं ब्रीफली दोनों सवालात का जवाब देता हूँ। देखिए, मायूसी की तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जितनी इस वक्त सूरत हाल ख़राब है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं और वज़न पे शुरू से वॉच करें। और उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स ये हैं कि एक तो जैसे आप ये प्रोग्राम करें कि मीडिया लोगों को अवेयर करे, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में शुरू से बच्चों को ये हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में आगाही दी जाए। फास्ट फूड का इस्तेमाल है, शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल है, शुरू से उनका उस तरफ रहनुमाई कीजिए। और दूसरा ये है कि हुकूमत की सतह पे बेहतर पॉलिसीज़ बनाई जाए, लोगों को मौके दिए जाएँ। वी नीड मोर ग्राउंड्स, हमें प्लेइंग फील्ड्स चाहिए। बिल्कुल, तो इसके ज़रिए हम कर सकते हैं, बाकी ममालिक ने भी किया, हम भी कर सकते हैं। और जहाँ तक मरीज़ों का ताल्लुक है, देखें सरप्राइजिंगली मुझे तो पाकिस्तान के मरीज़ देख के बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मरीज़ आर मच मोर थैंकफुल। अमेरिका में इट्स वेरी जो है ना वो प्रोफेशनल सा होता है कि हेलो डॉग, थैंक यू। यहाँ पे तो लोग आपको दुआएं भी देते हैं, फीस अलहदा दे रहे होते हैं, दुआएं आप उनसे अच्छी तरह से बात करें, उन्हें अच्छा गाइड करें। और सरप्राइजिंगली कंप्लाइंस भी बड़ी अच्छी है मरीजों। ये भी कहते हैं कि नहीं आपको नहीं पता, मुझे ज़्यादा पता है। देखिए, वो तो आपको डील करना पड़ता है कुछ मरीजों के साथ। जैसे डॉक्टर साहबा ने सारा डाइट का बताया, हम इतना उन्हें काउंसल करते हैं, फिर वो वापस आते हैं तो हालात वहीं पर होते हैं। लेकिन यू हैव टू वर्क विद द पेशेंट, आपको उनका पार्टनर डॉक्टर साहब बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। डॉक्टर मुतीन एंड डॉक्टर ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। Thank you so much. और हम ये उम्मीद करते हैं कि होपफुली इस सेगमेंट ने कोई फ़ायदा पहुंचाया, हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें घर बैठे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। और इसके साथ मैं भी कुछ ऐड जी, करना जी, चाहूँगी कि इतने डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं और वो एक ही कॉमन बात करते हैं कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, आप बिल्कुल। वॉक ज़रूर करें। तो अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, दिन में 30 मिनट ही निकालें, लेकिन ज़रूर निकालें, क्योंकि सारी बीमारियां हैं वो इसी चीज़ से हैं कि हम लोगों ने बिल्कुल जो है जिस्मानी हिलना छोड़ मशक्क़त दिया को है। छोड़ दिया है, हिलना छोड़ दिया है। तो तब तक के लिए जो है कि आप ज़रूर कोशिश करें कि आप दिन में 30 मिनट अपनी ज़ात को दें। तो हम ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, इस वक्त हम बात करेंगे पाकिस्तानी मुआशरे की, जो हमारी दरख्शां रिवायात का अमीन है, मगर बदकिस्मती से नई नस्ल में इस वक्त ये रिवायात मादूम होती जा रही हैं। हम सबका ये अवलीन फरीज़ा है कि हम सब मिलकर इन रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ करें और नई नस्ल को इनसे रोशनास कराएं। साहब, मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मारूफ दानिश्वर, शायर, नक़ाद और मुहक़्क़िक़ प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिद मुनीर आमिर साहब। आप जामिया अल-अज़हर काहिरा में उर्दू और पाकिस्तान स्टडीज़ चेयर, इसके अलावा फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेशंस की प्रोफेसर और चेयरपर्सन के तौर पर काम कर चुके हैं। आप पंजाब यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ में ज़फ़र अली खान चेयर के बानी भी हैं, जबकि इस वक्त यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर में उर्दू ज़बान और अदब के प्रोफेसर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हम देखते हैं, हम आज जो हमारा टॉपिक है वो है नई नस्ल में जो खराबी है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो नई नस्ल जो है वो, उसमें वो वाली रिवायात नहीं पाई जाती जो हम, अगर पहली जो हमारे कल्चर की बात की जाए तो उसका खासा है, या पहली नस्ल में थी। तो आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? नहीं, पहले तो मैं आपके सवाल की तस्हीह करना चाहूँगा खराबी कि नहीं। आपने कहा कि नई नस्ल में खराबियाँ हैं, तो ये तो एक सपोजिशन है। समझते हैं ना लोग कि ये अब हमारी जो ओल्ड जनरेशन है या वो समझते हैं कि ये जो नई नस्ल है इनको इस तरह से नहीं, जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह से नहीं चलते। ये बेसिकली जो सर रिवायात knowledge हमारी पाकिस्तानी मुआशरे का असासा है, वो आजकल की जनरेशन में नज़र नहीं आ रही। बुनियादी मसला तो ये है कि हर जनरेशन के बाद जब दूसरी जनरेशन आती है तो उनमें एक गैप होता और है, वो जी, जी। एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो गैप जो है वो दोनों के लिए कुछ उलझनें पैदा करने का बायस होता है जी। और उसमें कुछ रहनुमाई की ज़रूरत होती है। तो बदकिस्मती से वो रहनुमाई अगर बर वक्त मैसर ना हो तो फिर इस तरह के मसाइल और सवालात पैदा होते हैं। ठीक। हकीकत ये है कि हमारी जो जनरेशन है वो दुनिया की बहुत सी कौमों से बहुत बेहतर और बहुत बरतर जनरेशन है।
मुझे इत्तेफाक हुआ है यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, फार ईस्ट में, दुनिया के कई मुल्कों में जाने का, काम करने का, पढ़ाने का, वहाँ के नौजवानों से मिलने का, उनको पढ़ाने का। तो मेरा तजुर्बा ये है कि पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है वो बहुत बासलाहियत, बहुत जौहर काबिल की हामिल और बहुत तख्लीकी क़ुव्वत से भरपूर है। ठीक है। मैं दुनिया के दूसरे मुल्कों में पढ़ाता रहा तो वहाँ या उनके बच्चों को यहाँ पढ़ाता रहा, तो मैंने देखा कि जितनी क्रिएटिविटी पाकिस्तानी नौजवान में है वो दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों के नौजवानों में भी नहीं है। वाह। अच्छा, फिर ये मसला क्यों है? बिल्कुल। जी जी। यानी जहानत में किसी से पीछे नहीं, तख्लीकी क़ुव्वत जो कि बुनियादी चीज़ होती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, दुनिया में कुछ करने के लिए, उसमें किसी से पीछे नहीं। तो लेकिन दूसरी कौमें हमसे आगे हैं और हमारे पास नौजवान जो हैं उनकी तादाद कितनी है? 2/3 यस। पाकिस्तान की कुल आबादी का 2/3 नौजवान है। जी। यानी ये यंगेस्ट नेशन है पाकिस्तान। और वैसे भी पॉपुलेशन में भी हम 5वें नंबर पर आते हैं पूरी दुनिया में। तो तादाद में भी हम कम नहीं हैं, सलाहियत में भी हम कम नहीं हैं। तो फिर इससे तो पीछे तो फिर ये क्या मसला है? तो मसला जो मैं समझाऊँ, मैंने इस मौजू पे बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, बहुत तज्ज़िया भी किया है, और भी किया। मैं ये समझाऊँ कि रहनुमाई का फुक़दान ये बुनियादी मसला है कि प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर गाइडेंस नहीं तो मिलती। किसकी जानिब से रहनुमाई की जानी चाहिए? ओवरऑल यानी सोसाइटी जो है वो इस तरह से ओरिएंटेड नहीं है कि नए मुसाफिरों को बर वक्त रहनुमाई फराहम की जाए। हम ये तवक्को करते हैं कि उसे एक दरिया के तलातुम में फेंक दिया जाए और वो खुद ही हाथ पांव मारकर तैरना सीख लेगा। प्रोफेसर साहब, हम लोग जब बात करते हैं पाकिस्तानी मुआशरे की बिलखसूस, तो हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम जो एक बड़ी पावरफुल चीज़ समझा जाता है और उसके फ़वाइद भी बहुत हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, चले जॉइंट फैमिली सिस्टम ना भी हो, इटसेल्फ जो एक फैमिली सिस्टम है, इमीडिएट फैमिली सिस्टम है, वो भी अब जिस तरह से टूटता बिखरता हमें नज़र आता है कि अब इंडिविजुअलिज्म की जानिब ज़्यादा लोग जो हैं वो जाना शुरू हो गए हैं, बिलखसूस नौजवान नस्ल। नाउ एवरीबडी वांट्स देयर स्पेस। तो ये क्या है और इससे क्या ये हम किसी ज़्यादा ख़राबी की जानिब बढ़ रहे हैं, या ये जिस तरह से मुआशरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये सही रास्ते पर है? देखिए, इसमें बुनियादी चीज़ तख्लीकी तफक्कुर होता है, क्रिएटिव थिंकिंग। अगर मुआशरे में क्रिएटिव थिंकिंग ओवरऑल मौजूद हो तो फिर आप अपने स्टैंडर्ड्स खुद सेट करते हैं, आप उधारे स्टैंडर्ड्स पर नहीं चलते। तो ये जिस मसले की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये उधारे मेयारों पर चलने का नतीजा है। कि हम देखा देखी इधर से उधर से जो देख रहे हैं, हमने अपने मेयार मुख्तलिफ कर लिए हैं। बिल्कुल। जब हमारे मेयार जो हैं वो बेसिकली मॉरल होंगे तो फिर ये मसाइल नहीं पैदा होंगे। तो जब हमारे मेयार बेसिकली मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं तो फिर ये मसाइल पैदा होते हैं। ज़ाहिर साहब, आप क्या समझते हैं कि तालीम के साथ साथ अखलाकी तरबियत की कितनी ज़रूरत है हमारी नौजवान नस्ल को, और जो हम बात करते हैं नॉर्मल एथिक्स की, उसकी कमी क्यों देखते हैं हम? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो नॉर्मल एथिक्स की कमी है वो ये अभी हम जो बात कर रहे हैं उसी के साथ जुड़ी हुई है। उसका ताल्लुक़ हमारे मेयारों से है। यानी हमारा कामयाबी का मेयार क्या है, नाकामी का मेयार क्या है, किसे हम कामयाबी समझते हैं। यानी बाय हुक और क्रुक दूसरे को ओवरटेक करके आगे निकल जाना कामयाबी है, हम यही समझते हैं बदकिस्मती से। और यही हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या हम मादी तौर पर तरक्की कर लेना उसको समझते हैं। अच्छा, फिर हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेयर क्या है, खुशी किसे कहते हैं जी। तो अगर हमें ये मालूम है कि हकीकी मसरत किसका नाम है और वही हम ट्रांसफ़र करते हैं अगली जनरेशन में, तो फिर ये मसाइल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो पैदा ही नहीं होते। और गम किसका नाम है, अगर हमें ये मालूम है, हम खुशी उन चीज़ों में समझ रहे हैं जिनमें खुशी मौजूद नहीं है। देखिए ना कि अगर हम मटीरियलिज़म में मसरत समझ रहे हैं तो मटीरियली इंसान जब बहुत तरक्की कर जाता है तो क्या वो कंटेंटमेंट का हामिल होता है, क्या उसे वो दाखिली सुकून मैसर होता है? शायद नहीं। तो इसका मतलब है कि वो मेयार
दुरुस्त नहीं था। डॉक्टर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग आपने प्रोफेसर साहब बात की, और वो बात ये है कि खुशी क्या है ये आइडेंटिफाई करना, गम क्या है ये आइडेंटिफाई करना, कामयाबी और क्या है, कामयाबी क्या है, और फिर नाकामी कंटेंटमेंट क्या की है। जो एक सिचुएशन है वो। मैं सवाल अब इस पे सर बुनियादी तौर पे ये है कि ये तमाम तर चीज़ें वो शख्स या वो दिमाग आइडेंटिफाई कर सकता है जो एक सोचने समझने की भरपूर सलाहियत रख रहा है, जिसको समझ आ रही है कि हाँ जी खुशी ये होती है, गम ये होती है, अपने आप को जो दरियाफ्त कर पा रहा है। अब ऐसे तख्लीकी दिमाग बनाने के लिए जो दरसगाहें चाहिए या जैसे उस्ताद चाहिए, आपको लगता है कि हमारे मुआशरे में वो हैं? हाँ, बदकिस्मती से मैं खुद टीचिंग से वाबस्ता हूँ और इसका जवाब नफ़ी में है। इसका जवाब आपकी आह से मिल गया। जी, जैसे आपने किया ना कि नहीं है। हमारे तालीमी इदारे वो फरीज़ा अंजाम नहीं दे रहे। तालीमी इदारे क्या, हमारा ख़ानदानी निज़ाम भी वो फरीज़ा अंजाम नहीं जी। दे रहा जो पेरेंट्स को फरीज़ा अंजाम देना चाहिए। पेरेंट्स के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं। हाँ जी। जब पेरेंट्स के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो फिर बच्चों के कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर हो सकते हैं? पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है इस सब में, क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए? वो अपने तसव्वुरात को ठीक करें। यही जिन तसव्वुरात की हम बात कर रहे हैं, अगर पेरेंट्स के बातिन में, उनके अजहान में ये तसव्वुरात दुरुस्त होंगे तो वो खुद ब खुद मुंतकिल हो जाएंगे ना अगली नस्ल में। वो खुद कंफ्यूज्ड हैं और वो खुद खारजी मेयारों से, यानी उन्हें तो ये भी नहीं पता कि शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करना है, उन्हें ये भी नहीं पता साबुन कौन सा इस्तेमाल करना है, वो तो इश्तिहार देख के फैसला करते हैं। यानी कमर्शियल आपको बताता है ना। प्रोफेसर साहब सवाल बुनियादी जी, तौर जी। पर अब एक और मेरे ज़हन में आ रहा है, और वो ये है कि हमारा मुआशरा जो इर्तिका का जो मरहला है वो तय कर रहा है, उस वजह से हम इस वक्त उस सिचुएशन में हैं या उस पोजीशन पे हैं जिसमें ये सवालात जन्म ले रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा है या कोई जेन्युइन खराबी पैदा हो रही है? क्योंकि हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ जब बैठते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो जिस कल्चर का हवाला देते हैं, कुछ तो हमने भी विटनेस किया, लेकिन जो नई नस्ल है वो टोटल उस कल्चर को विटनेस नहीं कर पाएगी, जो ज़्यादातर हमारे देहात में अभी भी बचा कुचा रह गया है। शहरों में भी हुआ करता था लेकिन अब वहाँ पर नहीं है। हमसाये का ख्याल रखना, और फिर रिश्तेदार जब आ रहे हैं तो उनको किस तरह से वेलकम किया जाता है, फिर उनको जब वो जा रहे हैं तो जिस तरह के तहाइफ उन्हें साथ दिए जा रहे हैं, मेहमान नवाजी, ये सारी चीज़ें, ये रिवायात, ये कल्चर मादूम होता जा रहा है और एक नया कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इज़ इट अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन? हम सही रास्ते पर हैं और हम एक जो सोसाइटी ने एक परफेक्ट सिचुएशन में पहुंचना है, जिस इमेज में पहुंचना है, ये उसके रास्ते पर हैं या वाकई ख़राबी पैदा हो रही है कहीं? मेरा ख्याल है कि शऊरी तौर पर जो तरबियती अमल होता है या इर्तिकाई अमल कह लें, इर्तिकाई अमल मुआशरे में होता है, हम शऊरी तौर पर तो वो अमल नहीं कर रहे। ऑटोमेटिकली ज़िंदगी के अंदर एक जौहर होता है, जी जो ज़िंदगी का बातिनी जौहर है वो खुदकार तरीके से भी काम करता है। जी जी। तो अगर उसे खारिज से सपोर्ट मिल जाए तो उसकी रफ्तार तेज़ हो जाती है और उसके रिज़ल्ट्स ज़्यादा रिफ़ाइन हो जाते हैं, ज़्यादा आपको मौसर तौर पर नज़र आते हैं। तो ये दोनों बायलैटरल ये प्रोसेस चलते रहते हैं, दाखिली भी और ख़ारिजी भी। तो ख़ारिजी सतह पर तो शायद हम ये सब कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो ज़िंदगी का अपना जौहर है, जो उसके बातिन में पिन्हा होता है, वो बहरहाल अपने इर्तिकाई अमल से गुजरता है। वो हो रहा है, वो इर्तिकाई अमल तो ज़िंदगी के साथ साथ हो रहा है और इतना बड़ा एक लर्निंग प्रोसेस अब दुनिया के सामने, आपके सामने खुला हुआ है। यानी वो जो आपको एक रेफरेंस चेक करने के लिए लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, इंसाइक्लोपीडिया निकालने होते थे, पूरे दिन में जाकर आप एक इन्फॉर्मेशन लेकर आते थे, अब आपकी एक क्लिक पर सारी दुनिया आपके मुट्ठी में है। प्रोफेसर साहब, वैसे वो जो एक जर्मन फिलोसोफर है हेगल, उनका एक डायलेक्ट का वो जो कॉन्सेप्ट है जी, जी, कि जी। सोसाइटी में थीसिस, फिर उसका एक एंटीथीसिस एंटीथीसिस और फिर सिंथेसिस आता है। जी। तो अभी थीसिस और एंटीथीसिस का मामला चल रहा है। तो बेसिकली जो मैं जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक सिंथेसिस वाली सिचुएशन आएगी जिसमें हम लोग सही इक़दार पे होंगे, और अगर आएगी तो वो जिम्मेदारी किसकी है? वो हमारे बड़े बुजुर्गों की, हमारे वालिदैन की, हमारे उस्ताज़ा की जिम्मेदारी है कि जो नई जनरेशन है उसको सही रास्ते में हम लोग रखें। सिंथेसिस खुद एक थीसिस होता है, जी 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 बिल्कुल। वो फिर आगे वही बिल्कुल, सिलसिला वो चलता सिलसिला है। चलता है। तो बुनियादी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है और उसके बाद टीचर की है। अगर पेरेंट्स, वही जहाँ से बात हमने शुरू की थी, अपने तसव्वुरात ठीक कर लें तो फिर वो बच्चों को सही नहज पर उस्तवार कर सकते हैं, उनकी शख्सियतों को बेहतर बना सकते हैं। और उसके बाद टीचर। अभी तो सूरत हाल ये है ना कि अगर
कहीं ख़ानदानी निज़ाम मौजूद है, जी जी जी। बाज़ जगहों पर मौजूद है ना, जी, जी। बाज़ घरानों में वो रिवायात अभी ज़िंदा बिल्कुल। हैं, चल रही हैं। तो वो बच्चा वो तरबियत पाकर जब घर से बाहर निकलता है तो मुआशरा उसकी तरदीद कर देता है। आपने प्रोफेसर साहब वाह। सही जानिब तवज्जो मबजूल करवाई है, हमारे नाजरीन ने होपफुली इस सेगमेंट को एंजॉय किया होगा। माजरत के साथ वक्त बहुत कम है, इसलिए इस टॉपिक के लिए आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। और बड़ी बेहतरीन और थोड़े वक्त में बात की, लेकिन बहुत बेहतरीन की। और ये थोड़ी सी तरबियत जो इल्मी है, गुफ्तगू है, कुछ हाँ। थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, लेकिन ये बहुत फायदेमंद भी है। लेकिन बात यही है कि जी हमारे पेरेंट्स पे और हमारे जो उसातिज़ा हैं उन पर बुनियादी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जो नई नस्ल है उनकी तरबियत कैसे तरबियत करें करें और सही कैसे तरीके से। उनको अपनी रिवायात से रोशनास करवा सकते हैं। तो अभी वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक, खुश आमदीद। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब। तो जिक्र करेंगे पाकिस्तान की खूबसूरती बिल्कुल का। जी। तो अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा तोहफा है पाकिस्तान, और इसमें इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं जिसका जिक्र किया जाए तो कम नहीं। बिल्कुल। यहाँ हर तरह का मौसम है, लहलहाते खेत हैं, समंदर है, साहिल है, दरिया है, बुलंदो बाला पहाड़ हैं, बर्फ पोश चोटियाँ हैं और खूबसूरत झीलें भी हैं। मादनियात की फरावानी, नायाब जंगली हयात, नबातियात और इसके साथ साथ बेहतरीन रेगिस्तानी और मैदानी इलाके भी मौजूद हैं। कुदरत की जो रंगानी इस खित्ते के हिस्से में आई है, शायद ही किसी और खित्ते के हिस्से में इस तरह की आई हो और नसीब हो। और अताबाद झील भी अल्लाह ताला की अता करदा खूबसूरतियों में से एक खूबसूरत इजाफा है, जो वादी हुंजा के दिलकश नज़ारों को मज़ीद पुरकशिश बना देती है। और मसनूई झील का शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में होता है। अताबाद झील 4 जनवरी 2010 को अचानक लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में वजूद में आई, और ये झील वादी हुंजा के इलाके करीब से मशरक़ के जानिब आधे घंटे की मुसाफत पर वादी गोजाल में मौजूद है। और इस झील की लंबाई 21 किलोमीटर और गहराई 358 फीट है। जन्नत नज़ीर अताबाद झील ज़्यादातर नीला दिखाई देती है और अपने नीले रंग की वजह से सयाहों को अपनी जानिब खींचती है। ये झील मौसम के लिहाज से अपना रंग भी तब्दील करती है। अगर पर सयाह बादल हों तो झील का रंग भी बादलों जैसा हो जाता है। क्या बात है जी। और ये मनाजिर हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैं खुद ये झील देख कर आया, तो क्या वाह। बात है जी। कुदरत का एक इतना खूबसूरत। शानदार ये नमूना, और इस झील के नीले पानी और इसके इर्द गिर्द माशाअल्लाह। मौजूद बुलंदो बाला पहाड़ों को अगर बिलखसूस देखा जाए, आप शहर बानो देखे हैं ये? मैंने नहीं देखी, लेकिन बहुत हसीन है और मैं अपनी जो है ना लिस्ट में इसको लिख रही हूँ। नहीं नहीं, जरूर आप जाएं, इसको लैंडस्लाइडिंग विजिट के करें। तौर पर ये वजूद में आई है, बड़ी डिफरेंट सी हाँ बात। जी बिल्कुल। ये यहाँ पर कुछ और आबादी, या आबादी तो नहीं, खैर कुछ और इलाका वगैरह था, लेकिन जब लैंडस्लाइडिंग हुई और उसके बाद ये झील जो है वो वजूद में आई। बड़ी खूबसूरत एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बड़ी खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। और यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में सयाह मुल्की और बैरून मुल्क से भी जो तशरीफ़ लाते हैं वो इस स्पॉट पे ज़रूर जाते हैं। जब भी हुंजा जाते हैं अताबाद लेक पे ज़रूर वो इवन यहाँ जाते हैं। पर इसके करीब जो है वो रिजॉर्ट्स पे बनाए गए हैं लकड़ी के, और वहाँ पर लोग रहते हैं और बड़ा एंजॉय बिल्कुल। करते और यहाँ हैं, पर पिक्चर्स अताबाद लेते हैं। टनल भी है जो बड़ी खूबसूरत है, और जब आप उसके अंदर से ड्राइव करते हुए जाते हैं ना, वाह 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 वाह। वाह तो वाह आपकी वाह, सारी क्या बात। थकावट और परेशानियां वैसे ही दूर हो जाती हैं। और इस तरह की जगहों पर जाकर मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस की है कि आप जब भी खूबसूरत इलाकों में जाते हैं और जो अल्लाह की तरफ से कुदरती खूबसूरती होती है, आप उसको देखते हैं तो मूड अच्छा नेचर हो के जाता करीब जाकर आपका मूड अच्छा हो जाता है, आपका डिप्रेशन जो है वो खत्म हो जाता और है। पाकिस्तान इस तरह के जो पॉइंट्स हैं, इस तरह के जो मकामात है, उससे भरा पड़ा है। वाह वाह। बड़ी खूबसूरत हमारी लैंडस्केप है, बिलखसूस हमारी नॉर्दर्न साइड, हमारा गिलगित बल्तिस्तान और हमारे ये इलाका जात जिनके कुछ मनाजिर हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर रोजाना की बुनियाद पर अपने एपिसोड में शेयर भी करते हैं, कवर करते हैं, कोशिश जी करते बिल्कुल। हैं कि ये है दिखाएं असली पाकिस्तान। पाकिस्तान ये है हमारा प्यारा और खूबसूरत पाकिस्तान। और पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ा खूबसूरती से नवाजा है, और इस तरह के बड़े मकामात हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। लोग वहाँ पर जाते हैं और एंजॉय करते हैं। ब्रेथ वहाँ पर टेकिंग लोग व्यूज रहते हैं शहर बानो। बेशक। हमारे साथ कई हमारे अपने करीबी दोस्त यार जो बाहर के ममालिक भी घूम फिर के वो आ चुके जरूर हैं, आते जब हैं। वो इन जगहों पर जाते हैं वो भी तारीफ किए बगैर नहीं रहते कि ये हैं असली माउंटेन्स। जब आप देखते हैं वहाँ पर जाके जो और पहाड़ी हम बहुत सिलसिला लकी है। हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान को अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है। तो अभी हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखें, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए सेगमेंट्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।